Good morning students and welcome back you all in my class. So dear students, our today's topic of discussion is relationship between TPP and MPP. Okay, as we know that our chapter 5, that is production function chapter, is going on. So from this chapter today I will discuss about the law of variable proportion. Okay, that means the relationship between TPP and MPP. Okay, so please dear students, concentrate on your class and please listen my words properly. Okay, so dear students, production function. Okay, so the relationship between TPP and MPP. relationship between TPP and MPP. And what? MPP. Sorry. So the relationship between TPP and MPP is also called what? Law of variable proportion. It's also called law of variable proportion. Law of variable proportion. And it is also called what? Returns to a factor. Returns to a factor. Returns to a factor. So अगर आपको पूछा गया कि state the law of variable proportion, so this topic is very much important for your exam, and from this topic 6 marks question will come. Okay, so please concentrate. So अगर आपको पूछा गया state the law of variable proportion, तो आपको क्या show करना? Relationship between TPP and MPP. Okay, and अगर आपको पूछा गया what is returns to a factor, then आपका आंसर क्या होगा कि what is law of variable proportion. Okay, so this law is only applicable in the short run. This law is only applicable in the short run. In the short run. So as we know that in short run we have short period of time means insufficiency of time. So due to insufficiency of time we cannot change all the factors of production. Is not it? So applicable in the short run only. So in short run some factors are fixed, some factors are fixed and some are fixed and some are variable. Is not it? So this law, that is law of variable proportion, is applicable only in the short run. So returns to a factor को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर returns to a factor आपको पूछा गया तो उसका definition क्या होगा? Law of variable proportion का जो definition होगा वही उसका definition है. First of all, it is the representation of short run production function. It is the representation of short run production function. Okay, वो किसका representation है short run में? Short run production function का. So this law is only applicable in the short run. ठीक है, वो लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं होता है, सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ओके, सो रिटर्न्स टू ए स्केल आपका दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, इस बार नहीं आएगा. ठीक है, सो इस बार हमें किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है आपको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दैट इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर के ऊपर. ओके, सो
अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी क्या होता है. So this question is very much important and this question may come in your exam for 6 marks. Okay? So please अच्छे से सुनना है आप लोगों को. So in case of law, वो law क्या बोलता है कि farm increases only one variable factor. Okay, one variable factor, that is आपका labor. Farm increases only one variable factor, that is labor. Farm क्या increase करेगा? सिर्फ production में labor को increase करता रहेगा. And other factors remaining what? Other factors remaining constant, means remaining fixed in the short run. Remaining fixed in the short run. So dear students, वो लो क्या बोलता है कि farm increases only one variable factor, that is farm increases only labor and other factors remaining fixed or other factors remaining constant in the short run. Okay, मतलब सिर्फ labor को increase करता रहेगा और बाकी सब जो factors रहेगा, factors of production, वो सब क्या रहेगा? fixed रहेगा. जैसे कि machines, ठीक है, हमारे पास machines क्या है? machines हमारे पास only 4 है, तो वो fixed रहेगा, उसको कुछ नहीं करेगा in the short run में. इसके बाद land we have only 2 acre of land, so वो भी fixed है. so उसको machines and land को वो क्या करेगा? increase ना करके this factors remaining fixed है, उसको बढ़ाएगा नहीं. ठीक है, machines हमारे पास 4 है, land हमारे पास 2 एकड़ ऑफ जमी है. ठीक है, तो आप लोग पकड़ 4 नहीं भी हो सकता है. सपोज मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास इतना है, तो वो क्या करेगा? फार्म फिक्स रख देगा इन द शॉर्ट रन में. सिर्फ किसको इंक्रीज करता रहेगा? लेबर. ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है कि टीपीपी और एमपीपी कैसा होता है. ठीक है, रिलेशनशिप शो करूंगी मैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी. सो फार्म वहां पे क्या बोलता है कि फार्म इंक्रीजेस ओनली वन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज फार्म इंक्रीजेस ओनली लेबर एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग फिक्स्ड. तो लेबर सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा है, बट मेरा लैंड फिक्स्ड है, मेरा बिल्डिंग जो है मेरे पास वो फिक्स्ड है, मेरे पास मशीन्स जो है सब कुछ फिक्स्ड है, सिर्फ लेबर इंक्रीज होता जा रहा है. तो तब क्या होगा? प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा? तो वो हम लोग शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टीपीपी एंड विद द हेल्प ऑफ एमपीपी. ओके, सो अभी आप लोग देखिए, एंड दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन. ओके, not in the long run. This law is not applicable in the long run. So it is the representation of what? Short run production function. So देखिए आप लोग, TPP and what? MPP. So relationship between TPP and MPP. Please 1 minute, dear students. Okay, so relationship between TPP and MPP. So वहां पे हम लोग क्या शो करेंगे? TPP एंड वहां पे MPP. So वहां पे नीचे लेबर, then labor. Okay, so what is the shape of TPP? It increases at an initially it increases at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, then suddenly it starts
फॉलिंग, है कि नहीं? Okay, so this is the shape of TPP curve, that is total physical product. Then it reaches, वहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट पे है, then वहां से देखिए MPP. So MPP क्या होगा जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा? MPP it becomes what? It is 0 and वहां पे क्या होगा? वो नेगेटिव, है कि नहीं? नेगेटिव. So dear students, there are mainly 3 stages of production: first stage, second stage and then third stage. Okay, so first stage of production, first, then second stage of production, second stage of production, then third stage of production. Okay, first stage of production, then second stage of production, then third stage of production. ठीक है, तो there are mainly 3 stages of production. So initially TPP increases at an increasing rate, and then TPP increases at a diminishing rate. And at second stage of production TPP क्या हो रहा है? TPP increases but at a diminishing rate. अच्छा ऐसे लिख लेना आप लोग, पूरा लिखना आप लोग, at a diminishing rate. Then here at third stage of production TPP starts what? TPP falls, है कि नहीं? And when TPP increases at an increasing rate at first stage of production, TPP increases at an increasing rate, MPP also increases. Okay, MPP also increases. And then when TPP increases but at a diminishing rate, MPP क्या कर रहा है? MPP decreases. MPP क्या हो रहा है हमारा? MPP decreases. Okay, so and then when TPP, देखिए वहां पे TPP मैक्सिमम में है, when TPP reaches, वहां पे क्या है? TPP मैक्सिमम है कि नहीं? So when TPP is maximum, your MPP is what? Your MPP is 0. Okay, and when TPP starts fall, MPP becomes negative. ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी कि at first stage of production में हमारा क्या होता है? इनिशियली हम लोगों ने क्या बोला कि उसका डेफिनेशन में क्या था? Firm increases only what? One variable factor. Only one variable factor. That means firm increases what? क्या increase कर रहा है? Only the amount of labor. Okay? So firm वहाँ पे क्या कर रहा है? Units of labor मतलब लेबर वहाँ पे increase होता जा रहा है. ठीक है, सो लेबर इनिशियली क्या होगा? हमारे पास मशीन्स कितना है? 4, एंड देन हमारे पास लैंड है, सपोज मैंने पकड़ा है कि हमारे पास मशीन्स 4 है, लैंड 2 एकड़ ऑफ लैंड है हमारे पास. ठीक है, सो एट दैट टाइम क्या होगा? इनिशियली फार्म का क्या, लेबर जब इंक्रीज हो रहा है बट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग फिक्स्ड, ऑल दीज आर फिक्स्ड. ओके, सो इनिशियली जब वो इंक्रीज होगा टीपीपी टोटल प्रोडक्शन, तो क्या होगा? हमारा
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमारा इंक्रीज होगा। तो क्यों होगा? एमपीपी जब इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन तो हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, बट एट ए बहुत फर्स्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है। दोनों एमपीपी फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एमपीपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपीपी भी इंक्रीज हो रहा है, बट एट एन इंक्रीज रेट, बहुत मतलब फर्स्ट रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत इंक्रीज हो रहा है। क्यों? इनिशियली हमारे पास 4 मशीन से लैंड टू एकड़ ऑफ लैंड है, इसके बाद उसके साथ अच्छे से मिलके मशीन्स लैंड, इसके बाद लेबर अच्छे से मिलके क्या कर रहे हैं, मशीन्स के साथ लैंड, इसके बाद लैंड को लेके क्या कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अच्छे से काम करने के कारण इनिशियली हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमारा इंक्रीज होगा। जो मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन, है कि नहीं? सो जो ऐड होगा टोटल प्रोडक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब लेबर अच्छे से, ड्यू टू बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग टू फैक्टर्स, अमंग वेरिएबल फैक्टर्स एंड अमंग फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब लेबर अच्छे से काम कर रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, मशीन के साथ और लैंड के साथ अच्छे से मिलके काम कर रहा है। ठीक है, बट इसलिए क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे जाके हमारा टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ स्लो रेट। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है बट कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो एडिशन होना था टोटल प्रोडक्शन में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? एज बिकॉज हमारा सेकेंड स्टेज में लेबर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 4 लेबर था। ठीक है, 4 लेबर के साथ 4 मशीन, इसके बाद 2 एकड़ ऑफ लैंड था। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हमारे पास 10 लेबर और 4 मशीन और 2 एकड़ ऑफ जमीन है। ठीक है, तो लेबर ज्यादा हो रहा है कि नहीं? वहां पे क्या हो रहा है, हमारा लेबर ज्यादा हो रहा है, फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। लेबर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 10 या फिर आप पकड़ सकते हो 12। ओके, तो हमारा उसके हिसाब से मशीन्स कम है कि नहीं? लेबर के हिसाब से हमारा क्या है, मशीन्स कम है। तो मशीन्स तो इट रिमेन्स फिक्स्ड ना। तो हमने क्या बोला था कि मशीन्स वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन लेबर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है। क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में हमारा क्या होता है, किसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, है कि नहीं? सो ड्यू टू प्रेशर्स ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स योर एमपीपी क्या हो रहा है, एमपीपी डिक्रीजेस हो रहा है। मतलब टोटल प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, टीपीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। ओके, समझ में आ गया आपको? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो देन प्लीज मुझे मैसेज करके बोलना है। ठीक है, सो एंड देन देखिए थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपीपी जब मैक्सिमम में आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया हमारा, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0। लेकिन एट थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आपका टीपीपी फॉल्स कर रहा है। कि व्हाई? यस, बिकॉज थर्ड स्टेज में आपका लेबर बहुत ज्यादा हो गया, 25 लेबर आ गया, लेकिन आपका फिक्स्ड फैक्टर्स तो सेम ही है, तो उसके साथ वो कॉप अप नहीं कर सकता। बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों के बीच में, आपका लेबर ज्यादा है, मशीन्स कम है, होगा क्या? सो फिक्स्ड फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया एंड वहां पे क्या हो गया, ओवरक्राउडिंग। जब ओवरक्राउडिंग कहीं पे हो जाता है ना, तो आपका प्रोडक्शन क्या होने लगता है, प्रोडक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग एंड योर फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। सो आपका सिर्फ लेबर बढ़ता जाएगा और जो मशीन से जमी है, आपके पास लैंड है, वो नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो फॉर दिस रीजन आपका क्या होता है, एमपीपी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, एंड टीपीपी टोटल प्रोडक्शन भी आपका फॉल करने लगता है एट थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज वो जो टॉपिक है आपको अच्छे से करना है। दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो देन इमीडिएटली मुझे बोलना है। ठीक है, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड आपको आप
of variable proportion with the help of TPP and MPP. Okay, so वो जो होमवर्क है आपको करके दिखाना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. So dear students, for today